जब भी हम फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में सोचते हैं, वी नीड एन एडवाइजर हु इज नॉट ओनली इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल बट इज ऑल्सो वाइज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट फॉर अस. बट द बिगर प्रॉब्लम हियर इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. देयर आर मोर देन 8,000 म्यूचुअल फंड schemes to choose from. There are more than 600 equity schemes in mutual funds that are standalone. But most of the money in equity mutual funds is invested in the top 50 companies. So what does this mean? The real challenge for any financial advisor is to analyze all of these financial products and recommend the best product for you. But ये humanly impossible है to analyze all 50,000 plus financial products and everything put together. While it is possible that a financial advisor has your best interests at heart, it is also possible that the financial advisor's resources are limited in order to analyze all the products available. Let's understand whether the financial product buffet is good or bad for you in today's episode of Financial Wellbeing 101. Hi, I'm Mayur Shah. I'm one of the very first SEBI registered investment advisors in India. इस फील्ड में मेरी शुरुआत हुई मेरे कॉलेज लाइफ से. कॉलेज लाइफ में कुछ करना है तो आई टुक अ इंश्योरेंस एजेंसी ऑन माय नेम. जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में आ गया, व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन इन अकाउंट्स एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, मेरे को क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ते थे. पीपल वर कमिंग टू मी एंड आस्किंग मी कि मयूर टैक्स बचाना है, इन्वेस्ट करना है, क्या करूँ, कौन सा प्रोडक्ट लूँ. देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि क्या करना चाहिए. I dig more, I study personal finance more, I did necessary certifications, and then I enter into the advisory where I am actually guiding people as per their requirement. Since then, we are helping various families to live financially stress-free life by educating them on all aspects of personal financial life. इतने सारे प्रोडक्ट्स पहले से नहीं थे. मार्केट इवॉल्व होते होते ही इवॉल्व होता है. लेकिन ये भी सही है बिकॉज इतना मीडिया प्रेजेंस नहीं था, इतना सब कुछ रेडीली अवेलेबल नहीं था, तो बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो पहले पता भी नहीं थे. लेकिन पहले से इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड भी नहीं था. बट टू आंसर योर क्वेश्चन इन ए शॉर्ट, आई टेल यू, जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होता गया, प्रोडक्ट्स बढ़ते गए, मीडिया एंड ये सब का इन्फ्लुएंस की वजह से भी लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स जो पहले थे लेकिन पता नहीं थे, वो पता चलने लगे. So that is beyond our control. That you can ask this question in any product manufacturer. You may ask this question, na? Bombarding is everywhere in any field. Now your work is stay calm. Don't have FOMO. It's not a rat race. Understand personal finance, understand your behavior, your needs, and accordingly you may take a help of experts where to invest and what to buy and what not to buy. अगर आपको घर खरीदना है, आप अगर बिल्डर को जाके पूछेंगे कि मेरे को घर खरीदना है, what do you think, what is the right time for me to buy a house? He'll tell you अभी आज के दिन you will never get this opportunity ever. But this is not a case. Every generation will keep buying houses. Go everywhere. Product seller or product manufacturer, it is his work to sell the products. So you have to sit on your chair and then you have to decide whether can I understand this product or not. If you don't understand this product, then don't buy it. Even if a God selling you that product, don't buy it. Okay, remember it. Please save this. You have n number of clothes shops in your city. That doesn't mean कि हर शॉप में जाके आप इंक्वायरी करो. आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हो, किस प्रकार के कपड़े आपको सूट होते हैं, वो देखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है. अकॉर्डिंगली फाइंड अ सूटेबल शॉप जहाँ पे आपको अच्छा ब्रांड मिले और बजट में कपड़े चाहिए, तो अकॉर्डिंगली ही और शी हैज टू फाइंड अ शॉप. ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन बहुत कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज 50 लाख रुपीज, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज 1 करोड़ रुपीज. तो ऐसे सब प्रोडक्ट पता होने से भी आई विल नॉट इमीडिएटली गेट अप एंड गो एंड इन्वेस्ट इन दोस प्रोडक्ट्स. इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुनना, उनसे प्रोडक्ट समझना, उसमें तो कोई गलत नहीं है, बिकॉज वो जनरल एडवाइस है सबके लिए. जो भी यूट्यूब पे अगर मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, आई एम नॉट नोइंग योर रिस्क प्रोफाइल. आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके गोल्स क्या है, योर फाइनेंशियल लाइफस्टाइल कैसी है. आई एम नॉट नोइंग एनीथिंग. विदाउट नोइंग एनीथिंग, इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ प्रोडक्ट, इट्स लाइक ओनली नोइंग अबाउट इंस्ट्रूमेंट. लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करना है अगर मेरे को सही से पता ही नहीं है, तो इट इज ऑफ नो यूज जस्ट टू बाय एंड हैव दैट इंस्ट्रूमेंट एट माय होम. ये प्रॉब्लम बिल्कुल है कि बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, उसमें से मैं चूज क्या करूँ, ये प्रॉब्लम है. लेकिन उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट टेकिंग पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ सीरियसली. इफ विल स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली, अपने आप विल अंडरस्टैंड क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए. यू कांट बी अ सचिन तेंदुलकर जस्ट बाय सीइंग हिम बैटिंग फॉर 20 years.
सो सिमिलरली आपको जानना है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप किस चीज के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपकी उम्र क्या है, लोन लायबिलिटीज क्या है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। उसके बाद वन हैज टू डिसाइड कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। Years back somebody have sell you wrong products and now you have a mindset of नहीं इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, वो गलत ही होता है। या फिर I have seen the clients जिनको रिटायरमेंट बेनिफिट करके 60 से 85 तक हर साल मैच्योर होने वाला एक पॉलिसी बेचा जाता है, एंड देन विदाउट थिंकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, विदाउट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर एक्सपेंसेस, क्लाइंट इज वेरी हैप्पी। सो अनफॉर्चुनेटली अवर कंट्री इन पर्सनल फाइनेंस मिस सेलिंग इज वेरी हाई। So we have to understand when you are sitting with me, we need to understand what is your financial behavior, what good or bad experiences you have regarding investments, how seriously you are taking this topic. All will play an important role while selecting a product. See, understand personal finance is more personal than finance. हम लोग personal आराम से बाजू में रख देते हैं, then everybody is behind about investments, returns क्या मिलेंगे। Understand, see how much you are earning, then write down your expenses in different head कि जरूरी कौन से हैं, अवॉइड करने वाले कौन से हैं। 6 से 8 महीने का खर्चा आपका इमरजेंसी के लिए रखिए, बाकी जो पैसे हैं वो आपके गोल्स के हिसाब से प्रॉपर एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्ट करिए, देन यू विल बी एबल टू चूज द राइट प्रोडक्ट। अगर आपके पास बहुत समय है तो यू कैन इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी। इक्विटी में भी जाके आगे एलोकेशन आप कर सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। देयर इज नो थंब रूल और देयर इज नो रॉकेट साइंस कि आपको बोल दिया अभी यूनिवर्सल एप्लीकेबल यही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दीज थिंग्स विल गेट रिपीट इन पर्सनल फाइनेंस। आपको आपका रिस्क एपेटाइट देखना है, आपको आपका इनकम कितना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। सिर्फ रिस्क एपेटाइट देख के भी नहीं होगा, आपकी जरूरत क्या है उसके हिसाब से आपको कितना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है, या यू कैन लिव इतना है कि कोई भी न रिस्क लूं तो भी मैं आराम से जी जाऊंगा, देन यू नीड नॉट टू टेक अ रिस्क। देन फॉर यू प्रोडक्ट मे बी डिफरेंट, फॉर समबडी एल्स प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर इट इन वन सेंटेंस कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, कौन से प्रोडक्ट बुरे हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट के वजह से अरे मेरे दोस्त ने इन्वेस्ट किया है, मेरे कलीग ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट प्रोडक्ट they get involved into that, they invest money in that. Influencer, they are giving good knowledge about products. लेकिन अगर आप blindly उनको follow कर रहे हो तो आपको उनके ethics चेक करने की जरूरत है। कहाँ से आप चेक करोगे? अगर आपको नहीं पता है क्या खरीदना है और अभी तक आपने कुछ भी steps नहीं लिया है तो आई से स्टिल यू आर इन द बेटर शेप। इंस्टेड कि मेरे को पता नहीं था लेकिन जो जैसे जैसे मिलता गया मैं लेते गया, एंड नाउ आई हैव बंच ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आई एम नॉट अवेयर वेदर इट इज सुटेबल फॉर मी और नॉट। सो उससे पहला वाला सिनेरियो बहुत अच्छा है कि अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैं क्या करूं। सो स्टार्ट taking knowledge. See, in a day you can't build a house, you have to go by one brick. So similarly, try to understand. First, give importance to your personal financial life. Whatever goals you have, I'm not saying invest everything, don't live your life now. Plan everything. Planning is very important. Just tell me any other field in which you are getting successful without planning. So we can't live personal financial life without planning. Don't try to be a part of rat race. Understand your personal finance, understand what you need. Okay, it is never like it is a last opportunity for you. If you are missing it today, you will never get it back. Okay, unless and until you will understand it, don't go for it. Opportunities will keep coming.